Morning, good afternoon, good evening. Welcome back to SD All in One channel. Let me share my screen. Welcome to Network Day 4 and what will be going to be learned here will be going to be learned here voice model for the today. But before starting, I just want to be summarize what we learned so far. So first session we learn about what is the internet and what are the infrastructure technology like LAN, WAN and how the distance is going to be covered. The next session, like in day two session, we learn about the topology like bus topology, ring topology, what are the mesh topology, hybrid topology, star topology, point-to-point topology, how the data flow is happening, and which port, like if in case which cable or any cable is going to damage, how the stop the communication to moving forward. So that things we learn into the topology and the day three session. Sorry, we learn about what is the hub? What is the switch and what is router? Hub don't have the brain. When packet arrives on the hub, it will be going to redirect to all the port. That is we already discussed. And the next is the switch. Switch how they understand the which ability, which is the source, or like what is the source, what is the destination. So if packet moving around the source to destination, so like switch how to learn ability. So that we learn about the unicast, multicast, and broadcast. Unicast is nothing but one to one. Broadcast is the one to all, and multicast is nothing but to one to many group. And the third we learn about the router, that a like router have the ability to learn about the like separate broadcast domain, separate collision domain that we already seen that. Now in this session, for today's session, we'll be going to be discussing about OSI model, right? OSI is nothing but open system interconnection, and these things everywhere you need to be, and this is very important topic into the CCNA. Now, first, we will be going to talk about why OSI model needed or why it's needed. Let's take example if you have the two systems and one system having the Windows, another system having the Mac OS, and they have interconnected each other for the RJ45 for the what are the communication will happen between two. And if in case we just want to be communicate Windows to Mac, that's why we need some protocol to communicate to each other. Protocol is nothing but the set of rules. Clear? The first हमें ओपन लाइक ओएसआई मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पास एक विंडोज सिस्टम है, दूसरे के पास अगर मैक ओएस है, मुझे उन दोनों का कम्युनिकेशन करना है। तो इन 1984 में क्या हो गया, आईएसओ ने स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल को अप्रूव किया और वो मार्केट में आ गया। इन नाउ अब आप देखेंगे कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर है? 7 लेयर। फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एंड प्रोटोकॉल का क्या होगा? ये सेट ऑफ रूल है। हर एक लेयर में प्रोटोकॉल यूज करके, हर एक इसमें डिजाइन करके ये पूरा ओएसआई मॉडल डिफाइन हुआ है। इज दैट क्लियर? लेट मी ओपन माय पेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है एप्लीकेशन लेयर। अगर आपके दिमाग में आता होगा कि एप्लीकेशन इन द सेंस, मेरे पास एक एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है, लाइक प्ले स्टोर में आप कोई भी जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, वो एप्लीकेशन नहीं। या फिर आप देखेंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पेज, नहीं। एप्लीकेशन इज नथिंग बट दे विल बी गोइंग टू बी हेल्प टू नाउ इफ यू हाउ द गूगल क्रोम। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, किसी भी वेबसाइट को मतलब www.facebook.com, anywhere, the first protocol or it first will be going to be web addressing. What will happen in that? आप देखेंगे वहां पे मिलेंगे आपको HTTP और HTTPS. So that is comes under the application layer.
एंड इन एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, अगर मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह तो भी पॉसिबल है। अगर मुझे वेब या फिर ईमेल, दैट एसएनएमपी पॉप थ्री प्रोटोकॉल, या फिर मुझे वर्चुअली किसी भी रिमोटली कनेक्ट करना है तो टेलनेट प्रोटोकॉल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया, लाइक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि विच प्रोटोकॉल विल बी एचटीटीपी, एफटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी, पॉप एंड टेलनेट। सो ये प्रोटोकॉल यूज करके हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेशन करेंगे। अब आप कौन सी भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यू विल गेट एनीथिंग। नाउ दिस इज HTTPS, that is comes under the application, and this is not for website। अगर आपको फाइल ट्रांसफर भी करनी है या फिर आपको ईमेल या फिर किसी भी सिस्टम का रिमोट भी लेना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में मेरा क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर भी हो गया। उसके बाद जो भी मैं वेब यूज करूंगा उसका क्या होगा, HTTPS जो प्रोटोकॉल यूज हो जाएंगे। वैसे आउटलुक या फिर आप जैसे भी ईमेल भेजते हो तो दैट इज कम्स अंडर POP3 SNMP। और जैसे आप वर्चुअल किसी भी सिस्टम को आपको कनेक्ट करना है तो दैट इज कम्स अंडर द टेलनेट। यहाँ तक एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया। जैसे आपने किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी इसमें ओपन किया तो आप देखेंगे HTTP और आर द पोर्ट 80443 और लाइक सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेयर खत्म होगा। एप्लीकेशन लेयर के बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन लेयर। अभी प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, जैसे ही मेरा डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाएगा तो नेक्स्ट चीज क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो डेटा आएगा वो मुझे एक फॉर्मेट में मिलेगा और नीचे कुछ बाइनरी नंबर में इस फॉर्मेट में मुझे मान लो डेटा मिल गया। अभी एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, ये जो मुझे डेटा मिला एप्लीकेशन से वो फॉर्मेट में मिला है और मुझे वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। मुझे वो कन्वर्ट करना मतलब यहाँ पे मेरा काम क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। जैसे ट्रांसलेशन हो गया, जो डेटा मुझे एप्लीकेशन से मिला है मुझे वो डिफरेंट फॉर्मेट में मुझे उसको ट्रांसलेट करना है। एनी फॉर्मेट लाइक दिस इज फॉर्मेट आई हैव ट्रांसलेटेड। बट अभी प्रेजेंटेशन का एक और क्या काम है, अगर मेरा डेटा जो एप्लीकेशन लेयर से मुझे डेटा रिसीव हुआ है, मान लो मेरा 10 MB है। अगर मैं 10 MB मुझे करना है तो बहुत सारा मुझे डेटा भी जाएगा और मैं मतलब यूज भी करने पाऊंगा। ट्रांसलेशन के बाद होगा आपका इन प्रेजेंटेशन में क्या होगा, डेटा कॉम्प्रेशन। इस केस में क्या होगा, आपका जो भी 10 MBPS का डेटा है वो कॉम्प्रेस होकर हो जाएगा या फिर 1 या 2 MB। सो वो क्या है, उस काम क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि वो डेटा उसको कॉम्प्रेस करके उसको देना है। एप्लीकेशन लेयर से आपको तो डेटा आ गया, एप्लीकेशन लेयर में क्या हो गया, आपका फाइल वेब व्हाट आर द HTTP HTTPS, फिर आपका आउटलुक आएगा, फिर आपको कुछ वर्चुअल सिस्टम कनेक्ट करना है, टेलनेट करना है, वो प्रोटोकॉल यूज करके आपको एप्लीकेशन लेयर से होगा। जैसे एप्लीकेशन लेयर से डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाएगा, उसको ऑलरेडी वो फॉर्मेट में वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको, जो कंप्यूटर या फिर जो भी नेक्स्ट लेयर वो अंडरस्टैंड कर सके। बट एप्लीकेशन लेयर से तो डेटा बहुत बड़ा आ गया तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विदाउट कॉम्प्रेस में फाइल आगे ट्रांसफर कर नहीं पाऊंगा। और इसमें और एक चीज होती है, इंक्रिप्शन। अभी इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन इज नथिंग बट, अगर आपको डेटा इंटरनेट पे भेजना है, अगर मैं चाहूँ तो हैकर आपका डेटा टच नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड इज नथिंग बट if they cannot read the data,
इसलिए वो हैशिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं। क्योंकि मेरे पास अगर मेरा डेटा इंटरनेट पे रूट भी हो गया तो मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट रहेगा। एक प्रेशर की और वट एवर द की आई कैन यूज इज नथिंग बट द पासवर्ड, और वही पासवर्ड इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर पाएगा। अगर वो डेटा आपका इंटरनेट पे रूट भी होगा तो डोंट वरी, नो वन कैन हैक दिस। सो हो गया इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मेरे तीन चीजें हो गई। क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आ गया मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, जो मुझे नेक्स्ट लेयर उस नेक्स्ट लेयर को देना है वो उसको समझ पाए। मुझे मेरा डेटा बहुत बड़ा है, 10 MBPS है, तो मैं आगे भी लेयर को पास नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, वो डेटा डेटा कॉम्प्रेस कर गया। और इंक्रिप्शन क्या हो गया, मेरा सिक्योरिटी मिल गया। तो सिक्योरिटी इन द सेंस, अगर डेटा मेरा इंटरनेट पे रूट भी हो गया तो नो वन कैन मॉडिफाई, ओनली सोर्स एंड डेस्टिनेशन नो द की, व्हाट आर द पासवर्ड फॉर द इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन से डेटा प्रेजेंटेशन आ गया, अभी आएगा अपना सेशन। अभी सेशन लेयर में दो चीजें हैं। फर्स्ट, आप किसी भी सर्वर को अगर रिक्वेस्ट करेंगे, अब मान लो आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर ले www.facebook.com, वो क्या करेगा, पहले ऑथेंटिकेट करेगा, व्हाट इज द यूजर नेम, व्हाट इज द पासवर्ड, ये जो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सही है या नहीं। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑथेंटिकेशन हो गया। इन केस आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको एंट्री मिल गई तो आपका ऑथेंटिकेशन एक बार हो गया, तो उसके बाद होगा ऑथराइजेशन। दैट मीन्स आपका जो भी फाइल कंटेन है, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल्स, जो आप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कुछ सर्च कर रहे हैं, सो दैट इज कम्स अंडर द, जो रिक्वेस्ट आप क्या होगी सर्वर को हिट होगी, और दैट इज कम्स अंडर द ऑथराइजेशन। और सेशन मैनेजमेंट में क्या होगा, जैसे ही आप एनी आप लॉगिंग करते हो या फिर किसी रिक्वेस्ट को हिट करते हो, सेशन लेयर का काम क्या है कि वो सेशन मैनेजमेंट करे, न्यू सेशन इनिशिएट करे। यहाँ तक तो सही है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। एप्लीकेशन में आपका जो भी रहेगा, फाइल ट्रांसफर करना आप एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, वेब करना है आपको एचटीटीपी एचटीटीपीएस में करेंगे। आउटलुक है तो आप एसएनएमपी या फिर पॉप3 जाएंगे, या फिर आपको वर्चुअल किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करना तो आप टेलनेट कर जाएंगे। जैसे एप्लीकेशन से डेटा प्रेजेंटेशन में आ गया, वो तो डिफरेंट फॉर्मेट में है, मुझे क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेयर मुझे अंडरस्टैंड कर सके। और मेरा जो डेटा है वो बहुत बड़ा फाइल है, तो क्या करूंगा, मैं डेटा कॉम्प्रेस करूंगा उसको 10 MBPS से 2 MBPS पे लाके। एंड द प्रेजेंटेशन में थर्ड चीज क्या हो जाएगी, आपके पास जो भी इंक्रिप्शन है वो क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ओनली पासवर्ड और की और प्रेशर की दे हैव, they will be going to communicate and they only know what is the source and what is the destination, right? अभी इन सेशन में क्या होगा, सेशन में सर्वर को अगर आप ऑथेंटिकेशन मिल गया, ऑथराइजेशन मिल गया, और क्या हो गया, सेशन मैनेजमेंट हो गया। तो सेशन लेयर में क्या हो गया, ये तीन चीजें क्या होगा, ऑथेंटिकेशन भी हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, और सेशन मैनेजमेंट भी हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे ही सेशन लेयर से डेटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, राइट, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, पहले जो भी डेटा आया है उसको पहले देखेगा फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्या करेगा पहले, फ्लो ऑफ कंट्रोल। अभी फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, मान लो आपका सर्वर का स्पीड है 500 MBPS, और आपका जो भी लोकल सिस्टम है या फिर कुछ भी है उसका स्पीड है 20 MBPS। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर को या फिर सर्वर को, नहीं भाई मेरी इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना एक्सेप्ट कर सकूं, मैं 50 MBPS या फिर मेरा जो भी 20 MBPS स्पीड है मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट जो भी पैकेज सेंड करेगा वो क्या होगा, वो 20 MBPS के हिसाब से भेज देगा। तो जितना कंप्यूटर की कैपेसिटी है वो सर्वर उतना डेटा वो भेज देगा, राइट। सेकंड चीज ट्रांसपोर्ट लेयर में हो जाएगी, जो डेटा रहेगा वो एज लाइक क्या करेगा, एक पोर्ट नंबर
कंटेन करेगा। अभी पोर्ट नंबर इज नथिंग बट टू, क्या बोलते हैं उसको, ऑथराइज, means if I want to come into the network, some things that will be needs to be defined some port to coming in that network, that means port number। किसी भी सिक्योरिटी रीजन से आपको क्या करेगा, वो पोर्ट नंबर डिफाइन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा यहाँ पे आपका टीसीपी एंड यूडीपी। TCP and UDP is nothing but transmission control protocol, user data protocol। इन ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, टीसीपी ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा। यूडीपी क्या रहेगा, कनेक्शन लेस रहेगा। मतलब अगर टीसीपी में क्या होगा, मुझे कुछ डेटा भेजना है, जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तब तक मैं दूसरा पैकेट शेयर नहीं करूंगा। यूडीपी को उससे कोई लेना देना नहीं है कि पैकेट डेस्टिनेशन को जा रहे हैं या नहीं, वो कंटिन्यूअसली पैकेट फ्लो ही करता रहेगा। दैट मीन टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। अभी यूडीपी में एग्जांपल आएगा आपका, वीडियोस गेम आए गए, आप जो भी सॉन्ग सुनते हैं वो भी आए गए। और टीसीपी में आपका जो भी आप डब्ल्यू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू डब्ल्यू वेबसाइट को जो हिट करते हैं वो कम्स अंडर द टीसीपी एग्जाम। अभी मेरा एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया। एप्लीकेशन में मैंने क्या किया, मुझे रिमोटली चाहिए फिर कुछ भी वेब चाहिए, एचटीटीपी वेब यूज कर लिया। प्रेजेंटेशन में मैंने ट्रांसलेशन कर लिया, डेटा कॉम्प्रेस कर लिया ये, और इंक्रिप्ट भी कर लिया। सेशन में क्या होगा, ऑथराइज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, और उसके बाद मैंने क्या किया, सेशन मैनेजमेंट भी किया। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने क्या किया, फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया, या फिर जो भी मेरा डेटा मिसिंग है तो मैंने वो डेटा भी ऐड कर लिया। और क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। अभी उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आएगा नेटवर्क लेयर। जब भी हम राउटर डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि राउटर किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे काम करता है इन द सेंस क्या होगा, उसको एबिलिटी है क्या, लर्न टू आईपीस। अभी नेटवर्क लेयर में क्या होगा, ये वर्क करेगा आपका लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, उसके बाद पाथ डिटरमिनेशन। अभी लॉजिकल एड्रेसिंग में उसमें आपको आएगा IPv4 IPv6, उसके बाद मास आएगा। राउटिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी वो नेटवर्क या फिर राउटर कनेक्टेड रहेगा और उसको पता नहीं है कि दिस इज कनेक्टेड टू माय नेटवर्क और दिस इज नॉट पैकेट, दिस पैकेट इज नॉट रिलेटेड टू माय नेटवर्क, तो क्या करेगा, वन नेटवर्क से वो दूसरे नेटवर्क में भेज देगा। और तीसरी चीज है उसका क्या, पाथ ऑथेंटिकेशन। क्योंकि राउटर पहले चेक करेगा कि मेरा सोर्स एंड डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, ये मेरा सोर्स है, ये ले लो सोर्स, ये ले लो डेस्टिनेशन। और जैसे ही मेरा पैकेट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मेरा एक ही राउटर बीच में, यहाँ पे क्या हो गया, दो राउटर बीच में होके डेस्टिनेशन को जा रहे हैं। तो ये राउटर कौन सा पाथ चूज करेगा, ये पाथ चूज करेगा, क्योंकि वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कम्स अंडर OSPF BGP। तो पाथ डिटरमिनेशन कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर में होता है। क्योंकि नेटवर्क लेयर में क्या करेगा, वो चूज करेगा कि मुझे कौन सा पाथ इजी है और कितने में हॉप काउंट कम है, कितने में राउटर कम है टू रीच टू डेस्टिनेशन, वो पाथ वो सिलेक्ट कर लेगा। समझ में आ गया। एप्लीकेशन लेयर में हो गया,
एप्लीकेशन लेयर में आपका HTTP HTTP फाइल ट्रांसफर या फिर जो भी आउटलुक हो गया। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो भी डेटा उसको मिलेगा वो क्या करेगा, वो पहले क्या करेगा, उसका ट्रांसलेशन करेगा। उसके बाद डेटा कॉम्प्रेस करेगा। और वो क्या होगा, डेटा क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा। इंक्रिप्ट इन द सेंस नो वन कैन मॉडिफाई द डेटा एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन जो भी रहेगा। उसके बाद वो सेशन लेयर में आ जाएगा। सेशन लेयर में क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथराइजेशन होगा। और उसमें क्या करेगा, जो भी सर्वर को रिक्वेस्ट आएगा वो क्या करेगा, न्यू सेशन ओपन करेगा। तो दैट इज कम्स अंडर द सेशन मैनेजमेंट। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल। जितना कंप्यूटर है, जितना कैपेसिटी है, इट डजंट मैटर सर्वर की कितनी, आपके एक्सेप्ट करने की या फिर आपके डिवाइस की एक्सेप्ट करने की जितनी कैपेसिटी, आप वो सर्वर को बोल देंगे, नो आई विल एक्सेप्ट दैट मच पैकेट। दैट इज कम्स अंडर द ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद उसका आएगा TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल, लाइक कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। TCP में क्या होगा, उसको एक्नॉलेज, जो भी रिक्वेस्ट भेजा एक्नॉलेज नहीं आएगा तो वो दूसरा पैकेट भेजेगा ना। UDP को कुछ लेना देना नहीं, तो वो क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन को कंटिन्यूसली पैकेट फ्लो करता रहेगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर में क्या आ गया, लॉजिकल एड्रेसिंग, आपका IPv4 IPv6 आ गया। उसके बाद राउटिंग आ गया। राउटिंग में क्या होगा, अगर उसको पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना है तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क रहेगा वो क्या करेगा, एडवर्टाइज नेटवर्क कर लेगा। और उसके बाद आएगा पाथ डिटरमिनेशन। पाथ डिटरमिनेशन में क्या होगा, कि मुझे सबसे छोटा पाथ कौन सा है, मैं पहले वो एक्सेप्ट करूंगा। अगर इनकेस वो पाथ डाउनलोड हो गया तो मैं सेकेंडरी पाथ यूज करूंगा। सो दैट इज कम्स अंडर द नेटवर्क लेयर। इज दैट क्लियर नाउ? अभी डेटा लिंक लेयर पे आ गए। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि स्विच क्या है, स्विच किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अभी डेटा लिंक, मैंने ये भी बताया कि स्विचिंग क्या है, स्विचिंग टेबल में क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल। जब भी आपका डेटा पैकेज मूव होगा वन टू अनदर स्विच और समथिंग, दे विल बी कंटेनिंग देयर मैक एड्रेस, सम सेगमेंटेशन, राइट? सो दैट थिंग्स हैपन इनटू द डेटा लिंक लेयर। क्योंकि डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, इस पे जो भी डिटेल्स रहेंगे वो क्या मैक एड्रेस पे रहेंगे। बट नेटवर्क लेयर किस पे काम करेगा, आपके IP पे काम करेगा। लास्ट आपका रहेगा फिजिकल लेयर। अभी फिजिकल लेयर का सिर्फ एक ही काम है, कि मुझे वो बाइनरी 1 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिसमें मेरा सिस्टम या जो जो भी मेरा आगे का रहेगा सिग्नल वो अंडरस्टैंड कर सके। सो फिजिकल लेयर क्या करता है, ऑल जो भी उसको डेटा रिसीव हो क्या करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में करेगा। और जो भी सिग्नल बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा, उस मीडिया को समझना चाहिए, राइट? अभी ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका क्या होगा, सेगमेंटेशन हो गया। नेटवर्क में क्या होगा, आपका पैकेट हो गया। डेटा लिंक में क्या होगा, आपका फ्रेम हो गया। क्योंकि जो भी आप मैक एड्रेस, मैक मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट या फिर किसी डेटा पैकेट आपका जाएगा, दैट कंटेन सम ऑफ द फ्रेम। दैट इज ओवरऑल द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर। सो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल लिखे हुए, लाइक सेशन लेयर में क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो आपका एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, आपका FTP होगा, फाइल ट्रांसफर हो गया। या फिर जो भी आपका ईमेल सर्वर रहेगा, पॉप SNMP, या फिर वर्चुअल रहेगा, टेलनेट रहेगा। या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो HTTPS प्रोटोकॉल जो भी आपका आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर में आपको मैंने वैसे ही बोल दिया है कि ऑल द थिंग्स विच विल बी गोइंग टू बी इन टू द प्रेजेंटेशन। सेशन में सेशन मैनेजमेंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट TCP UDP। नेटवर्क लेयर में आपको जो भी IP एडवर्टाइज करेंगे वो आएगा, राउटिंग एड्रेस एंड पाथ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो इस पेप में करेगा। डेटा लिंक लेयर में जो भी आपका मैक एड्रेस टेबल रहेगा वो क्या करेगा, फ्रेम के साथ वो पैकेट आगे फॉरवर्ड कर लेगा। और फिजिकल लेयर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा दैट इज द डेटा इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। एंड वो सिग्नल किसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, मीडिया वालों। दैट थिंग्स हैपनिंग इनटू द OSI मॉडल। एक चीज ध्यान में रखने की, OSI मॉडल का यूज क्या है अपने पास, कि जब भी मेरे पास विंडोज OS है या फिर मैक OS है, मुझे उन दोनों का कम्युनिकेशन करना है, आज वो ऑलरेडी इंटरकनेक्ट है, तो मुझे कुछ ऐसा प्रोटोकॉल का सेटअप चाहिए जो मुझे कम्युनिकेशन करना है। इज दैट क्लियर? सो दैट थिंग्स
इस कम्स अंडर द ओएसआई मॉडल। ये सारी चीजें आपको 7 लेयर में आपको मतलब वन बाय वन जब भी आप पढ़ेंगे आपको पूरा लगेगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आएगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण। If you have any question related to any session, please drop a comment. I will reply that comment. Thank you. Bye. Take care.